reducible to linear equation in two variables. Here in this question, this equation is not linear equation because the degree of variable means the power of variable is not 1 here. But by assumption, by taking these variables in form of other variables, we will convert these equations in linear equation. Means we will reduce this equation in the form of linear equation. So how? Say in this equation you just see the common factors. Common factors क्या है? 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है. ये जो कॉमन फैक्टर है वेरिएबल्स के, इन्हें हमें एज्यूम करना है. तो ये कॉमन फैक्टर अभी यहाँ क्या है? 1/x. So we assume that let 1/x is equal to p and 1/y is equal to new variable q. Then what we have? We have our equation 1/x is what? P. So what is remaining? 2. So it is p upon 2. देखिए 1/x आपका p हो गया, लेकिन 1/2 remaining. 1/3 into 1/y. So it is q upon 3 is equal to 2. In the same way, it is p upon 3 plus q upon 2 is equal to 13 upon 6. Now we will reduce this equation in simplest form. देखिए क्या करेंगे, मैं इनका मल्टीप्लिकेशन या सॉरी इनका एलसीएम कितना है? 6. एलसीएम 6 है या फिर एलसीएम 6 ले लीजिए. अगर यहाँ 6 में एलसीएम ले लेता हूं तो ये 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 2. और ये 6 उधर जाएगा तो 6 2 जा 12. तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं. This is equal to 12. In the same way, here 6. So it is 2p plus 3q is equal to 13 by 6. 6 and 6 cancel. So you will get 2p plus 3q is equal to 13. Now these equations are linear equation in two variables. Okay, and variables are p and q. So we'll solve these two equations by any algebraic method. Here I am going to solve these equations using elimination method. See, so we have to equate the coefficients here. If I multiply first equation by 2, then this will be 6, and second by 3, then this will be 2 3 just 6 again. So what we do, just multiply equation first. इक्वेशन फर्स्ट को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो p के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे. अब p के कोएफिशिएंट सेम है, दोनों के साइन सेम है, तो हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. मीन्स हमें करना है 2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस 3 इंटू इक्वेशन 2. मीन्स इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके और माइनस करना है इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके. इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 6p प्लस 2 2 जा 4q इज इक्वल टू 12 2 जा 24. इधर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 13 3 जा 39. अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे. माइनस माइनस और ये माइनस. 6p कैंसल. 4 माइनस 9 इज माइनस 5q. 24 माइनस 39, तो 39 में से ये माइनस कर देंगे. यू विल गेट माइनस 15. सो q इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन माइनस 5. 5 3 जा 15. So you will get q is equal to 3. इस q is equal to 3 को हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो सुविधा इसमें रहेगी पुट करने में. क्यों? क्योंकि 3 3 जा 9. हाँ, किसी में भी पुट कर सकते हैं. चलिए करते हैं. पुटिंग q is equal to 3 इन इक्वेशन 2. सपोज मैं इक्वेशन 2 में इसको पुट कर रहा हूं.
तो इट इज 2p प्लस 3 into 3 is equal to 13. So it is 2p plus 9 is equal to 13. So it is 2p is equal to 13 minus 9. So 2p is equal to 13 minus 9 is 4. So p is equal to 4 by 2. So p is equal to 2. तो यहां से आपको p की वैल्यू 2 मिल गई और q की वैल्यू 3. बट वी एज्यूम हियर दिस p is equal to what 1 upon x and q is equal to 1 upon y. तो वापस हम इन वेरिएबल्स को p x और y के फॉर्म में लिख दें. नाउ 1 upon x is equal to p था और 1 upon y जो है वो q था. तो 1 upon x is equal to p and p is what 2. 1 upon y is equal to q and q is what? It is 3. इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो x होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 upon 2 होगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो y होगा, इसका कर देंगे तो 1 by 3. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 by 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 by 3. In this question, 1 upon root x is common in this term as well as in this term. इन दोनों टर्म में 1 upon root x कॉमन है. यहाँ पे 1 upon root y, 1 upon root y कॉमन है. मीन्स हम यहाँ एज्यूम कर लेंगे लेट 1 upon root x is equal to p and 1 upon root y is equal to q. So this equation become what? 2. 1 upon root x is what? P. So it is 2p plus 3q is equal to 2. And 4p minus 9q is equal to minus 1. So this is first equation and second equation. Yes. In the form of linear equations. क्या करना है? कोएफिशिएंट सेम करना है. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम हो जाएंगे. मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 1 से, और दोनों पॉजिटिव है तो हमें माइनस करना है. मीन्स 2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस 1 इंटू इक्वेशन 2. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये चीज हमें करना है 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4 एंड 4p माइनस 9q इज इक्वल टू माइनस 1. इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये एज इट इज हो जाएगा. माइनस करना है तो माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस प्लस. 4p कैंसल, 6 प्लस 9 15, 15q इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5. So q is equal to 5 by 15. So q is equal to 5 in the 5 and 5 3 is 15. So it is 1 upon 3. So in this way we get the value of q. Now we'll put the value of q. Putting q is equal to 1 upon 3 in equation. किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे. सपोज फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, सी. So it is 2p plus 3 into q. q is 1 upon 3 is equal to 2. 3 cancel. You will get 2p plus 1. 1 उधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस 1 हो जाएगा. तो 2p is equal to 1. So p is equal to 1 upon 2. तो हमें p की वैल्यू मिल गई. एक्चुअली p and q, p is equal to 1 upon root x and q is equal to 1 upon root y. So we'll put p is equal to 1 upon root x. ये हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है p और q की वैल्यू. तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड p, y एंड q. तो 1 अपॉन रूट x ये p के इक्वल था और p अपना किसके इक्वल है 1 अपॉन 2.
इसका मतलब रूट एक्स, देखिए 1 1 सेम है तो ये सेम होना चाहिए। रूट एक्स किसके इक्वल होगा, 2 के। तो एक्स इज इक्वल टू रूट, इधर रूट तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो एक्स की वैल्यू हो गई 4। 1 अपॉन रूट वाई, क्यू के इक्वल है और क्यू अपना है 1 अपॉन 3, तो रूट वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इधर रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9, तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। Yes, first of all we will divide both the equation by xy, xy से डिवाइड करेंगे तो 6x बाय xy, तो x कैंसिल हो जाएगा, y रिमेनिंग, तो व्हाट इज रिमेनिंग 6 अपॉन y। ऐसे इसको xy से डिवाइड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, इट इज 3 अपॉन x, और xy पूरा कैंसिल हो जाएगा तो ये 6। ऐसे यहां बचेगा आपके पास 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। अब 1 अपॉन वाई इधर भी है, 1 अपॉन वाई इधर भी है, 1 अपॉन एक्स इधर भी है, 1 अपॉन एक्स इधर भी है सेकंड टर्म में, तो ये कॉमन है, तो हम इनको एज्यूम कर लेते हैं। लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6 और 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से कर देंगे। 3 से करेंगे तो ये 3 2 6 होगा, 6p कैंसिल हो जाएगा। तो करना क्या है, 1 इंटू इक्वेशन 1 माइनस 3 इंटू इक्वेशन 2। अब इनको माइनस कर लेंगे तो 6p कैंसिल, 3 माइनस 12 मीन्स 12 माइनस 3 इज 9, माइनस 9q एंड हियर इट इज ऑल्सो 9। सो q इज इक्वल टू माइनस 9 बाय माइनस 9 दैट इज 1, तो q की वैल्यू आ गई अपने पास 1। इसको पुट कर देंगे, putting q is equal to 1 in equation first. So what we get, 6p plus 3 into 1 is equal to 6. So 6p plus 3 is equal to 6. 6p is equal to 6 minus 3. So 6p is equal to 6 minus 3 is 3. So p is equal to 3 by 6 that is 1 upon 2. तो p की वैल्यू अपने पास आ गई 1 upon 2. 1 upon y is p, so 1 upon y is equal to p. p is 1 upon 2 and 1 upon x is q and q is 1. So 1 upon x is equal to 1. So you get y is equal to 2 and x is equal to 1. One upon x minus 1 is common in first term. 1 upon y minus 2 is common in second term. So we'll take 1 upon x minus 1 is equal to p and 1 upon y minus 2 is equal to q. Now putting these values in equations, so you get 5p plus q is equal to 2 and 6p minus 3q is equal to 1. So this is first equation and second equation. If you multiply it by 3 then it will be 3q and it is minus 3q. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 1 से, मीन्स हमें क्या करना है 3 इंटू इक्वेशन 1 प्लस, अब दोनों के साइन चेंज है तो अपन प्लस कर देंगे इक्वेशन 2। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 प्लस 3q इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा और इनको प्लस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 21p इज इक्वल टू 7, तो p इज इक्वल टू 7 अपॉन 21 1 अपॉन 3, तो p की वैल्यू हमें मिली 1 अपॉन 3। इस 1 अपॉन 3 को हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पुटिंग
मीन्स आइदर इन फर्स्ट और सेकंड. P इज इक्वल टू 1/3. एक इक्वेशन P की वैल्यू 1/3 इसमें पुट कर देंगे ताकि ये कैंसिल हो जाएगा 3 से इन सेकंड. 6 इंटू 1/3 माइनस 3q इज इक्वल टू 1. सो 3 2 जा 6 2. तो ये 2 माइनस 1 इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो -1 हो जाएगा. ये नेगेटिव उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 3q हो जाएगा. इट इज 1 इज इक्वल टू 3q. तो 3 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो 1/3 मीन्स q इज इक्वल टू 1/3. q की वैल्यू आपको मिल गई 1/3. बट एक्चुअली p इज व्हाट 1/x minus 1. So now 1/x minus 1 is equal to p and 1/y minus 2 is equal to q. So 1/x minus 1 is equal to p. p is what 1/3. न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए. x minus 1 3 हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 plus 1 4. इधर 1/y minus 2 q के इक्वल और q है 1/3 के. तो y minus 2 जो है वो 3 हो जाएगा. y is equal to 2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 3 plus 2 5. So y is equal to 5. 1/3x plus y and 1/3x minus y. So we will take it as a p and this as a q. So now our equation become p plus q is equal to 3/4 and this is p by 2 minus q by 2 is equal to minus 1/8. इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4p plus 4q is equal to 3. इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 by 2 is 4. So it is 4p minus 4q is equal to minus 1. This is our first equation. Second equation see 4q and 4q पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों को ऐड कर दें. एडिंग इक्वेशन 1 and 2 तो ये मिल जाएगा आपका 4p plus 4q is equal to 3 and 4p minus 4q is equal to minus 1. ऐड करें कैंसिल हो जाएगा. 4p plus 4p 8p and 3 minus 1 is 2. So p is equal to 2 by 8 that is 1/4. तो p की वैल्यू अपने पास आ गई 1/4. इसको पुट कर दें. पुटिंग p is equal to 1/4 in equation 1. इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो ये हो जाएगा 4 into 1/4 प्लस 4q इज इक्वल टू 3. 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 बचा. 1 को उधर ट्रांसपोज कर दें RHS में तो 3 minus 1. So 4q is equal to 2. So q is equal to 2 by 4 that is q is equal to 1/2. X plus y is equal to p and 1/3x minus y is equal to q. So this implies 1/3x plus y is equal to p and p is what 1/4. Means what we get 3x plus y is equal to 4. एक नई इक्वेशन मिल गई आपको. और इधर 3x minus y is equal to q. q is what 1/2. So it is 3x minus y is equal to 2. Fourth equation. Again we get to linear equation. तो इनको इजीली हम सोल्व कर सकते हैं. दोनों को ऐड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा. देखिए एडिंग इक्वेशन 3 and 4. If you add these two equations, what we get 3x plus y is equal to 4. 3x minus y is equal to 2. y cancel. It is 6x is equal to 6. So x is equal to 1. Now putting x is equal to 1 in equation third क्योंकि x और y में पहली इक्वेशन थर्ड है. तो इसमें पुट करेंगे तो it is 3 into 1 plus y is equal to 4. 3 into 1 is 3. 3 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो -3. So y is equal to 4 minus 3. So y is equal to 1. तो सॉल्यूशन हो गया आपका x is equal to 1 and y is equal to
1.